Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS, as you know that we are on chapter number 15, that is our earth. And children, we have completed the explanation and exercise of this chapter. So what are we going to do in today's video? Children, I'm going to give you some additional questions, as I have told you in the previous one that I will be giving you some additional question on the topic. और इस चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर अर्थ है, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हैं जो कंटेंट से भी रिलेटेड होंगे, प्लस जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिया उससे रिलेटेड भी होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम यू कैन टेक योर कॉपी. आप अपनी ऑनलाइन वाली कॉपी में उतार सकते हैं, या डायरेक्टली आप अपनी EVS की कॉपी में उतार सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में उसे आराम से अपनी EVS की कॉपी में लिखेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट with the first question. Okay children, we'll do question answers first, because इससे पहले मैं आपको fill in the blanks या true false वगैरह मैंने additional questions के form में करवाया है. So for this chapter I'll give you question answers. Okay, so the first one is, let me write first, answer the following questions. First one, which planet is also called blue planet? First question is, which planet is also called blue planet? किस planet को हम blue planet भी कहते हैं? Children, Earth, जो हम planet Earth है, it is also called blue planet because of the availability of water. Okay, Earth, the Earth, ठीक है, the Earth is called blue planet because of the availability of water. Availability of water on it. Okay, next one. Next question is, I hope you have understood. Which planet is also called blue planet? The Earth is called blue planet because of the availability of water on it. Earth को blue planet कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी है, और पानी की वजह से अर्थ जो है, अगर स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू कलर का दिखता है. अगर स्पेस में जाकर अर्थ को देखेंगे तो ये हमें ब्लू कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अवेलेबिलिटी की जगह आप प्रेजेंस भी लिख सकते हैं. ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज, वाई अर्थ इज कॉल्ड आवर होम? वाई अर्थ इज कॉल्ड आवर होम? हम अर्थ को अपना घर क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल है चिल्ड्रन. प्लैनेट अर्थ is called our home because we live on it. क्योंकि हम इस पर रहते हैं, है ना. बिकॉज वी लिव ऑन इट,
हम इस प्लानट पे रहते हैं तो ये प्लानट हमारा घर हुआ। प्लानट अर्थ इज़ कॉल्ड आवर होम बिकॉज वी लिव ऑन इट। जहाँ हम रहते वही हमारा घर है। तो हम बहुत सिंपल आंसर लिख रहे हैं, बहुत इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वी आर सेइंग दैट प्लानट अर्थ इज़ आवर होम बिकॉज वी लिव ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the shape of the earth? What is the, sorry डेट नहीं डाला है मैंने, what is the shape of the earth? अर्थ का शेप कैसा है? What is the shape of the earth? स्टूडेंट आंसर होगा the shape of the earth is like an orange. The shape of the earth is like an orange. अर्थ का शेप कैसा है? एक ऑरेंज की तरह है। प्लीज़ नोट डाउन दिस सो दैट आई कैन गिव यू अदर क्वेश्चंस। अगर आपने इसे नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब मैं इसे इरेज कर दूँ। द डस्टर हियर। Now the next question. Question number 4 is, what is the earth made of? What is the earth made up of? What is the earth made up of? The earth is made up of land and water. The earth is made up of land and water. Earth दो चीज़ों से बना है, land से और water से। Name some landforms. Next question is, name some landforms. कुछ landforms के आपको नाम बताने हैं। तो आंसर है some landforms are, क्या है? Plain, plateau, mountains, mountain hill, valley, desert, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब और भी बाकी के। दीज आर some landforms. Next question is, name some water bodies. Name some water bodies. कुछ water bodies के अब नाम बताएंगे। तो some water bodies are, some water bodies are, कौन कौन से हैं water bodies? Oceans, sea, I hope if फ्रेम में आ रहा होगा, river, pond, lake, etc. और भी एक्सेट्रा मतलब और भी बहुत सारे।
These are the names of landforms and these are the names of water bodies. Children, we have studied all these in detail in the previous videos. चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे का और कराती हूँ. Question number 7. 7 is, why we cannot use ocean or sea water in our daily life? Why we cannot use ocean or sea water in our daily life? हम अपनी डेली लाइफ में ओशन और सी के वाटर को क्यों नहीं यूज़ कर सकते? आंसर क्या होगा? ओशन ओके why we cannot use ocean and sea water in our daily life? Oceans and seas have saline water. Oceans and seas have saline water. Saline मतलब आपको मैंने बताया था, saline का मतलब होता है salty. Okay, so oceans and seas have saline water, therefore we cannot use it for daily use. Okay, क्वेश्चन नंबर 8. ओशन और सी का वाटर सॉल्टी होता है, सलाइन होता है, इसलिए हम इसको डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है. जस्ट लेट मी राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Name some natural things. Name some natural things. कुछ natural things के नाम बताने हैं. आंसर क्या है? Some natural things are water, soil, air, plants, animals, etc. These are natural things. Next, question number 9. नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन. जस्ट अ मिनट. चिल्ड्रन, आई हैव गिवन यू 8 क्वेश्चंस है ना इन टुडेज वीडियो. ये क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में मैंने आपको 8 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं. चिल्ड्रन, देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस. कुछ और क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं और जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे. तो कुछ एक क्वेश्चंस बच गए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बच गए हैं, कुछ वन वर्ड आंसर्स बचे हुए हैं. हम वन वर्ड आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों में से कोई एक चीज़ ही करेंगे एडिशनल क्वेश्चन में. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं और
वन वर्ड आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स, दोनों तो नहीं, या तो वन वर्ड आंसर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मैं आपको एडिशनल क्वेश्चंस दूंगी। अभी क्वेश्चन आंसर्स अभी कुछ और हैं जो देने बाकी हैं, पर एक दिन में आप इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आप 8 क्वेश्चंस तक कर लीजिएगा, बाकी के कुछ एक क्वेश्चन जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, साथ ही कराऊंगी फिल इन द ब्लैंक्स या फिर वन वर्ड आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ सम मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।